اسرائیل حماس تنازع، کولمبیا پہلا غیر مسلم ملک بن گیا جس نے اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کو کہہ دیا۔ کولمبیا کے صدر کا کہنا ہے کہ جمہوری ممالک کو نازی ازم کو بین الاقوامی سیاست میں واپس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کولمبیا کے صدر گیسٹو پیٹرو کی طرف سے اسرائیلی اور حماس تنازع کے حوالے سے کیے گئے تبصروں پر سفارتی تنازع کے بعد کولمبیا نے اسرائیل کے سفیر گالی ڈیگن کو ملک چھوڑنے کو کہہ دیا ہے۔ پیٹرو کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کا یہودیوں پر نازی ظلم و ستم سے موازنہ کرنے پر تنقید کے بعد وزیر خارجہ الوارو لیوا نے سفیر کو معافی مانگنے اور وہاں سے جانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیٹرو نے اسرائیلی وزیر دفاع یو گیلنٹ پر نازیوں کی یہودیوں کے بارے میں جیسی زبان استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ 7 اکتوبر کو عسکریت پسند گروپ کے اچانک حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد تنازع بڑھ گیا جس میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی جوابی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 2750 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ جمہوری ممالک کو نازی ازم کو بین الاقوامی سیاست میں واپس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ کولمبیا کو سیکیورٹی برآمدات روک دے گا اور اس کی وزارت خارجہ نے پیٹرو کے دشمنانہ اور یہود مخالف بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے اور کولمبیا کی سفیر مارگریٹا مینیجریز کو طلب کیا ہے۔ پیٹرو نے نسل کشی کی حمایت کی تردید کی اور کہا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ اسرائیل کے ساتھ غیر ملکی تعلقات معطل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کولمبیا کے اسرائیل کے ساتھ قریبی سفارتی اور فوجی تعلقات کی تاریخ ہے اور ملک کی مسلح افواج اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ پیٹرو اور سفیر ڈگن کے ساتھ آن لائن تبادلے میں مصروف ہیں جس میں پیٹرو کو ہولوکاسٹ کی یادگاروں کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پیٹرو نے سفیر ڈگن کے ساتھ براہ راست الفاظ کی آن لائن جنگ میں بھی حصہ لیا ہے جس نے کولمبیا کے صدر پر زور دیا تھا کہ وہ معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ حملے کی مذمت کریں۔ پیٹرو نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دہشت گردی معصوم بچوں کو مارنا نہیں ہے، چاہے وہ کولمبیا میں ہو یا فلسطین میں۔ اس کے بعد ڈیگن نے پیٹرو کو یروشلم میں ہولوکاسٹ کی یادگار اور آشوٹس برکیناؤ ڈیتھ کیمپ کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جس کا صدر نے جواب دیا کہ انہوں نے غزہ میں نقل ہوتے دیکھا ہے۔ کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جمہوریت پسند غزہ کو حراستی کیمپ میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ابتدائی طور پر کولمبیا کی وزارت خارجہ نے اسرائیل میں ہونے والی دہشت گردی اور شہریوں کے خلاف حملوں کی شدید مذمت اور حماس کے حملے کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بیان جاری کیا تھا۔ کولمبیا کے وزارت خارجہ کے بیان کو بعد میں ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ دہشت گردی کا کوئی ذکر نہ کرنے والے ورژن کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ امریکی فوج نے اسرائیل کی حمایت کے لیے 2000 فوجیوں کا انتخاب کیا۔ توقع ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج غزہ میں زمینی کارروائی شروع کر دیں گی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے اسرائیل کی حمایت کے لیے تقریباً 2000 فوجیوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ فوجی جو امریکی مسلح خدمات کی مختلف شاخوں سے لائے گئے ہیں بنیادی طور پر مشاورتی اور طبی امداد فراہم کریں گے۔ وہ اس وقت مشرقی وسطی اور یورپ سمیت مختلف مقامات پر تعینات ہیں۔ یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ ان فوجیوں کا مقصد جنگی کرداروں میں حصہ لینا نہیں ہے اور امریکی حکام کے مطابق کسی کو بھی تعیناتی کے لیے اسٹینڈ بائی پر نہیں رکھا گیا ہے۔ ان فوجیوں کو کن حالات میں تعینات کیا جا سکتا ہے یا ان کی مخصوص منزل ابھی تک واضح نہیں ہے، جیسا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے۔ سی بی ایس کے 60 منٹس پر ایک انٹرویو کے دوران صدر جو بائیڈن سے اسرائیلی اور حماس کے درمیان لڑائی میں امریکی فوجیوں کے شامل ہونے کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس نے جواب دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اپنی فوجی قوتوں کی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی کہ سیکریٹری لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع یو گیلنٹ سے حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا اور کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی عناصر کو تنازع کو بڑھانے سے روکنے کے لیے اس کے عزم کا اظہار کیا۔ حماس کے حملے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی کوششوں کی حمایت میں تیزی سے خطے میں جنگی جہاز اور ہوائی جہاز تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پینٹاگون نے اطالوی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں مکمل کرنے کے بعد جیرالڈ آر فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ کو اسرائیل کی طرف ری ڈائریکٹ کیا ہے۔ کیریئر اسٹرائک گروپ بحیرہ روم کی طرف جا رہا ہے۔
पेंटागन ने मशरकी वस्ता के अड्डों पर मौजूदा F-15, A-10 और F-16 स्क्वाड्रन को मजीद तकवियत देने के लिए इजाफी जंगी तैयारों की रवानगी की भी इजाजत दी है। स्टैंड बाई पर मजीद कमक के साथ फैक्ट चेक किया, इसराइल और हमास के तनाज़ा में जंग बंदी हुई है। तवक्का है कि इसराइली दिफा अफवाज गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर देगी। जराए के मुताबिक पाकिस्तान जारी बहरान के दरमियान गजा के लिए इंसानी इमदाद रवाना करेगा। इसराइल के वहशियाना फिजाई हमलों के नतीजे में जारी बहरान के दौरान 2900 से जायद फलस्तीनी शहीद और 10,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने पीर को गजा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजने का फैसला करते हुए एक हमदर्दाना कदम उठाया। ये इकदाम गजा की पट्टी में अंधाधुन इसराइली जारिहत और तवील मुहासरे के बाद पैदा होने वाली संगीन इंसानी सूरत हाल के जवाब में किया गया है। गजा की पट्टी गुंजान आबादी बेमिसाल मसाइब से दो चार है और इमदाद की फौरी जरूरत ने पाकिस्तान को ये इंसानी मिशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। निगरां हुकूमत इमदाद की मुअस्सर और मुअस्सर तरसील को यकीनी बनाने के लिए मिस्र की हुकूमत फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिका इदारों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ हम आहंगी की कोशिशों में सरगर्म अमल है। UNFPA के रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 50,000 से ज्यादा हामला खवातीन को सेहत की देखभाल की शदीद किल्लत का सामना है। इसराइल गजा पर मुमकिना जमीनी हमले की भी तैयारी कर रहा है। गजा की पट्टी एक इंसानी तबाही के दिहाने पर है क्योंकि 50,000 हामला खवातीन बाशमुल 5,500 जिनकी इस माह पैदाइश मुतवक्का है को सेहत की बुनियादी खिदमात की भी शदीद कमी का सामना है। ये बहरान बढ़ती हुई कशीदगी और जमीनी हमले के बढ़ते हुए खतरे के पस मंजर में सामने आया है क्योंकि इसराइल तकरीबन एक दिहाई में पहली बार खित्ते में फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। जारी हंगामा आराई के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड UNFPA ने रिपोर्ट किया है कि गजा में हामला खवातीन संगीन हालात से गुजर रही हैं। उनकी सेहत की देखभाल तक रसाई का तवाजुन बरकरार है। फलस्तीन के लिए UNFPA के नुमाइंदे डोमिनिक एलन ने एक भयानक तस्वीर पेश की है। तसव्वुर करें कि इस अमल को इन आखिरी मराहिल में गुजरना है और पैदाइश से पहले अपने आखिरी सहमाही में मुमकिना पेचीदगियों के साथ बगैर लिबास के, बगैर हिफ्जाने सेहत के, मदद के और इस बात का यकीन नहीं है कि अगला घंटा, अगले दिन क्या होने वाला है और अगला लम्हा अपने लिए और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए लाएगा। गजा मुमकिना जमीनी हमले के लिए तैयार है। हालिया वाकयात की रोशनी में ये बहरान मजीद गहरा हुआ है जहां फलस्तीनी जंगजुओं ने इसराइल की भारी किलाबंद अलहदगी की रुकावट को तोड़ा, जिसके नतीजे में इसराइलियों में 1300 से ज्यादा जानें गईं। इसके जवाब में इसराइल गजा पर मुमकिना जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा इकदाम जिसका खित्ते में तकरीबन एक दिहाई से मुशाहिदा नहीं किया गया। जमीनी कार्रवाई के इम्कान ने मजीद फलस्तीनियों की हलाकतों और महसूर इलाके में तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश पैदा कर दी है। फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद पहले ही कम अज कम 2750 से तजावुज कर गई है। इस मौजूदा तनाज़े ने अब गजा में गुज़िश्ता 4 जंगों से ज्यादा जानें ले ली हैं, जिससे इंसानी बहरान मजीद गहरा हो गया है। हैरान कुन हलाकतों के साथ साथ जख्मी फलस्तीनियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। शदीद तनाज़ात के इस अरसे के दौरान 9,700 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तिब्बी सामान और सेहत की देखभाल की खिदमात की शदीद किल्लत ने बहुत से फलस्तीनियों को अहम तिब्बी देखभाल तक महदूद रसाई के साथ छोड़ दिया है, जिससे पहले से कमजोर आबादी के मसाइब में इजाफा हुआ है। जैसा कि दुनिया गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, बैनुल अक़वामी बिरादरी शहरियों पर तबाह कुन असरात के बारे में गहरी तशवीश रखती है, खास तौर पर हामला खवातीन जो खुद को इंतहाई नाजुक हालात में पाती हैं और अपने बच्चों की जिंदगियों में तवाजुन बरकरार रखती हैं। इंसानी हमदर्दी की मुदाखलत और बहरान के सिफारती हल की फौरी जरूरत इससे ज्यादा वाज़ेह कभी नहीं हुई है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने फलस्तीनी अवाम को उनकी ज़रूरत के वक्त अहम इमदाद फराहम करने के पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक की है। स्पोक्स ने गजा की सूरत हाल की संगीनी को उजागर करते हुए अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों को मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन इमदाद की तरसील के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के लिए सरगर्म अमल हैं। इस बहरान के लिए हमवार और बरवक्त रद्द अमल को यकीनी बनाते हुए उन्होंने मजीद कहा, तर्जुमान ने इस बात का आदा किया है कि गजा के अवाम जो कि बेपनाह मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है और मदद फराहम करने के लिए पाकिस्तान का अज़म खित्ते में जारी बहरान के खात्मे के लिए कौम के अज़म को उजागर करता है। 9 दिन का इजाफा। 90 दिन इसराइल और हमास ने जुनूबी गजा में जंग बंदी पर इत्तफाक किया था। गजा और मिस्र के दरमियान रफह क्रॉसिंग पीर को सुबह 9 बजे से आर्जी तौर पर खोल दी गई है, जिससे गैर मुल्कियों बाशमुल अंदाजन 600 अमरीकी शहरियों को मिस्र में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। गजा पर मुमकिना इसराइली हमले के दरमियान राइटर्स ने रिपोर्ट किया है, लेकिन जैसे ही खबर ब्रेक हुई, इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर और हमास दोनों ने इस बात की तरदीद की कि जंग बंदी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इसराइल की क्रॉसिंग बंद करने के बाद गजा से निकलने का वाहिद रास्ता रफा है। मिस्र के साथ ताज़ा तरीन मुआहिदे की बुनियाद पर सिर्फ गैर मुल्की शहरियों को वहां से गुजरने की इजाजत है। अमरीकी मुहक्कमा खारजा ने कहा है कि रफा क्रॉसिंग पर सूरत हाल सियाल और गैर मुतवक्का है और ये गैर वाज़े है कि गजा पर इसराइल के ज़मीनी हमले के दौरान क्रॉसिंग कब तक खुली रहेगी। गैर मुल्की और दोहरी शहरियत के अफराद इनखिला के इंतजामात के मुंतज़िर हैं, जबकि अर्दन और तुर्की की तरफ से भेजी गई इंसानी इमदाद रफा क्रॉसिंग पर फंस गई है। दाखिले की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद गजा में मारे गए कम अज कम 2808, जख्मी कम अज कम 10,859, मकबूजा वेस्ट बैंक हलाक कम अज कम 57, जख्मी कम अज कम 1200। इसराइल मारे गए कम अज कम 1400, जख्मी कम अज कम 3400। वजीर आजम के दफ्तर ने पीर की सुबह कहा है कि गैर मुल्कियों को हटाने के बदले में गजा की पट्टी में कोई जंग बंदी और इंसानी इमदाद नहीं है। ताहम इंसानी इमदाद के ट्रक मिस्र की रफा क्रॉसिंग के रास्ते गजा की पट्टी में दाखिल हो रहे हैं। इसराइल शहरियों को निकाल रहा है। वजीर दिफा और IDF की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लेबनानी सरहद से 2 किलोमीटर तक के इलाके में रहने वाले शुमाली इसराइल के रिहायशियों को सरकारी इमदाद से चलने वाले गेस्ट हाउसेज में मुंतकिल करने के मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान किया है। इस मंसूबे के निफाज की मंजूरी वजीर दिफा यूव गैलेंट ने दी। थोड़ी देर पहले शुमाली कमान ने मकामी हुक्काम के सरबराहों को इस फैसले से आगाह किया। इस मंसूबे को मकामी बल्दियात के सरबराहान, वजीर दाखिला और वजीर दिफा की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर बाइडन इसराइल के दौरे पर गौर कर रहे हैं। सदर जो बाइडन आने वाले दिनों में इसराइल के दौरे पर गौर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सफर को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने इतवार को कहा है कि हमास के अचानक हमले के खिलाफ तल अबीब की हिमायत के तौर पर, जिसमें इसराइल में 1300 से जायद अफराद हलाक हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने इतला दी है कि ये सफर बाइडन के लिए इसराइली अवाम से जाती तौर पर तस्दीक करने का एक मौका होगा कि अमेरिका उनके पीछे खड़ा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन इस पिछले हफ्ते पहले ही मशरिकी वस्ता का दौरा कर रहे हैं ताकि हमास के साथ जंग को वसी तर इलाकाई तनाज़ा को भड़काने से रोका जा सके। बाइडन ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल को रोकने के लिए अपने सख्त तरीन अवामी बयानात भी दिए, जिसमें कम अज कम 30 अमरीकी शहरियों समेत 1400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इतवार को नशर होने वाले CBS के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में खबरदार किया कि इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहिए। बाइडन ने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, मेरी नज़र में गजा में जो कुछ हुआ वो हमास है और हमास के इंतहाई अनासिर तमाम फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए गजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती होगी।